Hello all. This is the first chapter of class 11 business studies nature and purpose of business. So here are the I have taken the example of class 11th NCERT book, the basic book which is helpful for your business study. तो ये जो किताब है एनसीईआरटी द्वारा दी गई है और इस पुस्तक में आपको सभी चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो हमारा ये जो बुक है ये इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। ये जो हमारा चैप्टर है देयर आर फ्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर मींस व्हाट विच learning aspect or which objective you can fulfill after completing this chapter. So the first one is explain the concept and characteristics of business. Second, compare the distinctive features of business profession and employment. Thirdly, classify business activities and clarify the meaning of industry and commerce. Fourth, state various types of industries, explain the activities relating to commerce, analyze the objectives of business, describe the nature of business risk and their causes, and discuss the factors, basic factors to be considered while starting a business. So today we will deal with the first part of the chapter, that is the introduction and concept of business. So what do we mean by business, or what is the basic reason of business? Business in a literal sense we can say that the act of getting busy is known as business. That is when we are doing some work, or when we are being associated with some work, that is known as business. So in a literal sense we can say it as busyness, B-U-S-I, busy, and N-E-S-S, that means when you are busy in something, that is business. So in business studies or the study, or when we are studying the business word financial stream, financial matter, what is the thing we are what is the difference between business sense and in other sense? So uh, the term business is derived from the word busy, that what I am sharing with you all. Thus business means being busy. However, in specific sense, business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity. So here in business studies, we are converting this activity into economic activity. Whenever we are talking about economic activities, we are referring to the word business. जब भी हम लोग अपने द्वारा किए गए काम को मनी मैटर में या पैसे में या आर्थिक तौर पे तौलते हैं, तो उसे ही हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। तो हमारा जो सोसाइटी है वो हमारा जो लाइफ स्पैन है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, उसमें हमारा हमें कुछ काम करने होते हैं, हमें कुछ कार्य करने होते हैं। तो वो जो एक्टिविटीज, वो जो कार्य हम करते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडर सेंस में टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, we can easily understand what is economic activities. That is whenever we are rendering something, rendering services, producing activities, and in return to that we are creating money or we are earning money, that is an economic activity. But non-economic activities is something different. That is when this process is the same. We will be rendering the services, we will be producing the things, we will be doing all the things just like economic activities work, but we are not being paid for that. That means हमें उसके लिए किसी भी तरह का आर्थिक लाभ नहीं होता है। So that is why it is known as non-economic activity. अब जो हमारा एक्टिविटी है इसको हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। दैट इज ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक प्रोसेसेस है जिसके द्वारा हम लोग बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सी हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब ये जो बिजनेस है इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हम अभी बता रहे थे कि बिजनेस को अगर हम लोग बिजनेस स्टडीज के माध्यम से देखें या स्टडी ऑफ बिजनेस के माध्यम से देखें, तो ये वो एक्टिविटी है जिससे हमें मनी इन्वॉल्व होता है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं या पैसे का लाभ होता है। तो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंडली, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम अभी बता रहे थे। अगर हम सर्विस को रेंडर कर रहे हैं
या किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइदर हम प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोक्योर मतलब होता है परचेज करना। तो ये जो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट यानी आप या तो उसको जनरेट कर रहे हैं या तो उसको सेल कर रहे हैं। तो ये जो चीज है गुड्स और सर्विसेज को जब हम लोग बिजनेस के तौर पे देखते हैं यानी इकोनॉमिक तौर पे देखते हैं, दिस इज द अनदर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। थर्ड इज योर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जब हम लोग किसी चीज, जो अभी हम बता रहे थे कि अगर हम किसी चीज को प्रोक्योर करते हैं यानी खरीदते हैं, सपोज वी आर कंज्यूमिंग रॉ मटेरियल्स and in exchange we are producing finished products. So finished products we are not producing in order to keep it into our home, we are producing it in order to sell it into the market. तो ये जो सेल हम करते हैं, ये जो सर्विसेज को, ये जो गुड्स को हम लोग सेल करते हैं यानी मार्केट में बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स मतलब जो हमारा हमें जो चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी नीड क्लोथ्स, तो क्लोथ्स वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो रॉ मटेरियल्स क्लोथ के लिए जो कॉटन खरीदा जाता है, दैट इज द प्रोक्योरमेंट, एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज द ड्रेसेस। So whatever dresses we are getting into the market, that is the sale of the goods. Likewise, when when you are visiting a doctor, the doctor he is rendering his service to you and we are purchasing his service now. तो ये हमारा दो एग्जांपल हो गया, एक टेंजिबल गुड का और एक इंटेंजिबल सर्विस का। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है, ये सारे प्रोसेस में मनी इन्वॉल्व है। अगर मनी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, दैट मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये जो हमारा बिजनेस का प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस है, ये रेगुलर है। इसको हम लोग आज किए फिर कल नहीं किए, फिर परसों किए फिर उसके बाद किए, हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। इसको चलते रहना है। इट शुड बी रेगुलर इन मोटिव, दैट मीन्स एज देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट, द सप्लायर हैज टू फुलफिल द डिमांड। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज बिजनेस एक्टिविटी, इट इज एन कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्निंग। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ अ बिजनेस। कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है, कोई भी इंसान अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिजनेस करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है, दैट इज टू अर्न मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो बिजनेस का कोई मोल नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब आप इसको हम लोग ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का लॉजिक ये होता है कि जितने भी मनी को या जितने भी कैपिटल को हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो उससे हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, 10 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, तो आप ये जरूर चाहिएगा कि आई विल गेट एटलीस्ट 7 to 8% ऑफ दैट 10 रुपीज। तो ये भी एक नॉर्मल साइकोलॉजी बिजनेस में रन करता है कि अगर आप जो पैसा लगाते हैं उससे आपको ये 10 से 8 वाला जो रेशियो है ये मिलेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं। दिस इज अनसर्टेन, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट, इट इज नॉट फिक्स्ड दैट यू विल बी गेटिंग द रिटर्न टू दैट अमाउंट। ओके, so the next characteristics is your element of risk. Yes, business is totally accumulated and fixed with the risk. जब भी आप बिजनेस करने जाते हो, आपको रिस्क अपने सर पे ढो के चलना होता है। इफ यू विल नॉट टेक रिस्क यू विल नॉट गेन। ये तो देयर इज वन कॉमन सेइंग, नो रिस्क नो गेन। तो बिजनेस इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ दिस सेइंग। इफ देयर इज नो रिस्क देयर विल बी नो गेन। So this is the another characteristics or feature of business, that it is it is completely enriched with the risk element. Okay, now coming to the next part, this is here. So we have done till this part. So this is the another part, comparison of business, profession and employment. This we will be going to deal with in our next video. Hope you will like this video. Please do like, share and subscribe my channel, and please comment if there is any more things which has to be changed or removed. Thank you all. Thank you students.